فیصلوں میں تاخیر، بجلی صارفین پر بجلی بند کر گری۔ نیپرا اور پاور ڈویژن کی ملی بھگت بھی بجلی کے بلوں میں اضافے کی وجوہات میں شامل ہے۔ 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد صارفین پر جولائی اور اگست کا بوجھ ایک ساتھ ڈالا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے کامران چودھری کی یہ رپورٹ۔ بجلی صارفین کی دہائیاں کام آئیں، نہ ہی تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، ریلیف ملا نہ کوئی اعلان ہوا، تاہم صارفین پر ڈالے گئے بوجھ کی وجوہات سامنے آنے لگیں۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق نیپرا نے ڈسکوز کے ملٹی ایئر ٹیرف کے فیصلے میں تاخیر کی۔ IMF معاہدے کے تحت 1 جولائی سے ٹیرف بڑھایا جانا تھا، تاہم پاور ڈویژن نے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کا نوٹیفیکیشن 26 جولائی اور نیپرا نے 25 جولائی کو فیصلہ حکومت کو بھیجا۔ 26 جولائی تک ڈسکوز پرانے ٹیرف کے مطابق بل صارفین کو بھیج چکی تھیں۔ 75% بل پرانے ٹیرف کے تحت 26 جولائی تک صارفین موصول بھی کر چکے تھے۔ 75% صارفین کو 26 جولائی کے فیصلے کی روشنی میں ڈبل بل اگست میں موصول ہوئے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق اگست میں بلز ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اضافی رقم بھی بلوں میں شامل کی گئی، جس سے تقریباً 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بجلی کے صارفین پر 2 گنا بوجھ آیا اور صارفین بھی سڑکوں پر آ گئے۔ حکومت نے صارفین کے احتجاج کے باعث ریلیف کے مختلف آپشنز پر غور کیا۔ IMF کو بھی پلان پیش کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے 3 روز قبل 48 گھنٹوں میں ریلیف کا اعلان کیا گیا، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ کامران چودھری، اسلام آباد، اب تک۔ اٹک میں مہنگائی کے خلاف حاجی شاہ کے مقام پر احتجاج کے باعث GT روڈ بند ہے۔ پشاور اسلام آباد شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مظاہرین نے ٹائروں کو بھی نذر آتش کیا ہے۔ اٹک جہاں مہنگائی کے خلاف حاجی شاہ کے مقام پر احتجاج کے باعث GT روڈ بند ہے، پشاور اسلام آباد شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے ٹائروں کو بھی نذر آتش کیا ہے۔ اٹک صاحب کو اپڈیٹ کریں جہاں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری ہے، GT روڈ کو بند کر دیا گیا ہے۔ حاجی شاہ کا یہ مقام ہے۔ پشاور اسلام آباد شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مظاہرین نے ٹائروں کو نذر آتش کر دیا ہے۔ مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر اٹک کے مناظر ہیں جہاں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے حاجی شاہ کے مقام پر، اور اسی باعث پشاور اسلام آباد شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ GT روڈ بند ہو گیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے اس وقت ہمارے نمائندے لیاقت عمر لائن پر موجود ہے۔ لیاقت، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بجلی بلوں اور مہنگائی کے خلاف اور ٹیکسز کے خلاف جو ہے وہ حاجی شاہ روڈ کے مقام پر GT روڈ پر جو ہے وہ علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا ہے۔ GT روڈ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، بلاک رکھ کر اور پتھر رکھ کر، اور یہ جو شاہراہ ہے پشاور اسلام آباد کو اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے جو بھاری بھرکم بل ہیں ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے اور ٹیکسز کو کم کیا جائے۔ اطلاع پر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موقع پر پہنچی ہے اور مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، جس سے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک بجلی کے بلوں اور مہنگائی کو کم نہیں کیا جائے گا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ کل بھی اسی طرح ہڑتال کے وقت بھی اسی طرح یہ سارے تمام جو روڈ تھے اور بازار تھے وہ بند رہے تھے۔ جی لیاقت عمر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگی بجلی کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ تاجر برادری کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ملازمت اور مہنگی بجلی کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ محمد عارف سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی عارف۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی جو ہے تو مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی کے بلوں میں بھاری بھر رقم بھیجنے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا تاجر برادری کی جانب سے۔ عوام کے ساتھ متحد ہو کر انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں وہ احتجاجی مظاہرے کریں گے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، جبکہ تیسرے مرحلے میں وہ پھر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ آج دوسرے روز بھی جو ہے تو پشاور اور اس کے مضافات میں بازار، دکانیں جو ہے تو وہ بند کی گئی ہیں۔ احتجاجی کیمپ لگائے گئے ہیں یہاں پر، اور حکومت کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف جو ہے تو وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی پر قابو پائے، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لائے، جبکہ اس کے ساتھ ہی بجلی کے بلوں میں بھی کمی لائی جائے اور عوام کو تھوڑی سی ریلیف دیں، تبھی ان کا یہ ہڑتال
ख़त्म होगा। अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया और इस पर काबू ना पाया, आवाम को रिलीफ नहीं दी, तो उनका तीसरा मरहला शुरू होगा पहिया जाम हड़ताल की जानिब। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। यहाँ पर अशरफ रोड पर कई दुकानें भी बंद कराए गए थे ज़बरदस्ती, और टायर्स भी जलाए गए थे, जिसके खिलाफ पेशावर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। और मुजाहरे की जो क़यादत कर रहे थे रहनुमा, उनके खिलाफ जो है तो वो FIR की गई है, उनको नामजद किया गया है, जबकि उनके घरों पर और हुजरों पर गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जी मोहम्मद आरिफ हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। होशरुबा महंगाई के खिलाफ खैरपुर के शहरी भी सड़कों पर निकल आए हैं। उनका कहना है कि मुसलसल बढ़ती महंगाई से तंग आ चुके हैं। सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक सिराजुद्दीन शाहवानी से। जी सिराज। खैरपुर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एक मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ खैरपुर प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। आइए चलते हैं इन मुजाहिरीन से मालूम करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। ये जो मुल्क जो अफसरशाही है उसने तबाह करके रख दिया है मुल्क। हालत ये है हमारे मजदूर की, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम गरीब बंदे कहाँ से पे करें? अगर मशीन बिल पे नहीं चलाते, बिजली पे नहीं चलाते और चलाते अगर डीजल पे चलाते तो डीजल की कीमतों भी आपने आसमान पे चढ़ा दी है। और हम मजदूर को देंगे तो क्या देंगे? उसकी दिहाड़ी बेचारे की कितनी है? अर्ज ये है कि काफ़ी अरसे से जो ये महंगाई का तूफान आ रहा है, इन्होंने मजदूर आदमी का जीना हराम कर दिया है। 2 वक्त का खाना मुश्किल से खा रहे हैं, वो भी खा नहीं पा रहे हैं। बीमारी से बच्चे बिस्तर पे पड़े हैं तो इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। आज मजबूर होकर हम रोडों पे निकले हैं। आपने यहाँ पे मुजाहिरीन की बातें सुनी कि बढ़ती हुई महंगाई से आदमी बड़ा परेशान हो गया है और खुदकशी करने पर मजबूर हो गया है। इन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द महंगाई को ख़त्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आवाम सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। उधर बिजली के होशरुबा बिल, मुल्क भर में अवामी एहतजाज, निगरां वज़ीर आज़म की डेडलाइन भी गुजर गई, मगर महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। निगरां हुकूमत IMF के साथ इजाफी बिलों की अदायगी के फार्मूले पर कोई इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम हो गई। क्या महंगाई के मारे अवाम को अब कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? निगरां हुकूमत पर सवालात खड़े होना शुरू हो गए। कौन सा वादा, कौन सा रिलीफ? गुर्बत व अफलास, लगातार महंगाई के बम बर्दाश्त करती अवाम को निगरां वजीर आजम सिर्फ दिलासे देने लगे। महंगाई के जुल्म ढा दिए, मगर रिलीफ देने के लिए वजीर आजम के पास कुछ नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की 48 घंटे की डेडलाइन भी गुजर गई। बिजली के होशरुबा बिलों में अवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। 48 घंटे की डेडलाइन IMF की सख्त मुजाहिमत के बायस बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ के ऐलान के बगैर ही गुजर गई। बिजली की कीमतें, बिजली महंगी है। मुल्क भर में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल से भी निगरां हुकूमत के सर पर जूं तक न रेंगी। जराए के मुताबिक IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मंजूरी नहीं दी। पाक IMF इजाफी बिलों की अदायगी के फार्मूले पर कोई इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम रहे। अवाम के पास कोई इजाफी वसाइल हैं, ना ही निगरां हुकूमत की जानिब से कोई सब्सिडी। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत के रवैये से नाखुश। अवाम का कहना है कि कभी बिजली कभी पेट्रोल बम गिरा दिए जाते हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि फौरी बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। इस हुकूमत में पता नहीं क्या हो गया, एकदम बिल बहुत ज्यादा आने लग गए। ये देखे पंखे बंद पड़े हमारे, खत्म कर दिया। ऊपर से ये बिजली के बिल देख लें। सब्जी मंडी में 1500 कमाने वाले लोग 15-15, 20 हजार बिल कहां से दें? माहिरीन का कहना है कि अवाम को फौरी रिलीफ ना दिया गया तो मुल्क भर में जारी एहतजाज में मजीद शिद्दत आएगी। निगरां हुकूमत को जल्द इकदामात करने होंगे। महंगाई से तंग अवाम की जिंदगी से मिठास भी रुखसत हो गई। पेट्रोल महंगा होते ही मुल्क भर में चीनी की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बिजली और पेट्रोल की जायद कीमतों का रोना रोने वाले अवाम से चीनी की मिठास भी छीन ली गई। मुल्क भर में चीनी माफिया बेलगाम हो गया। चीनी की कीमत में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया। लाहौर और कोयटा में 5 रुपए फी किलो इजाफे के बाद चीनी 175 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद में चीनी 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। निगरां हुकूमत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर काबू पाने में मुसलसल नाकाम। हुक्मरानों से नाराज शहरी चीनी के बायकाट का सोचने पर मजबूर हो गए। वैसे तो पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन अब ताज़ा सूरत हाल जो बनी हुई है वो चीनी के हवाले से है, जो 180 रुपए से कम कोई दुकानदार देने को तैयार नहीं है, और जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यूटिलिटी स्टोर्स पे प्रोवाइड करने की, वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। चीनी सिर्फ महंगी नहीं हुई, हर चीज़ महंगी हो गई है। एशियाई खुर्दोनोश आवाम की पहुँच से बाहर है। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पर हुकूमत को सोचना चाहिए और ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए जिससे गरीब आदमी को फायदा हो। मुल्क में जरूरत से कम चीनी ने इसे अवाम की दस्तरस से बाहर कर दिया। तर्जुमान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक मुल्क में चीनी की किल्लत का कोई खदशा नहीं, मगर इसकी कीमत में मुसलसल इजाफे को रोकने की ताहाल कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। खबर यह है कि कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 3 एहलकार डकैती में मुलव्विस निकले हैं। सीटीडी के तीनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक एहलकारों ने जाली छापे में ताजिर से 3 करोड़ रुपए छीने, जबकि ताजिर सुनार का काम करता है, वो कराची से मुल्तान जा रहा था। मसर, शुएब और एहसन को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी गई है। शहर कायद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 3 एहलकार डकैती में मुलव्विस निकले हैं। सीटीडी के तीनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर कायद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 3 एहलकार डकैती में मुलव्विस निकले हैं। सीटीडी के तीनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक एहलकारों ने जाली छापे में ताजिर से 3 करोड़ रुपए छीने। कश्मीर में हिंदू पंचायत समेत मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों की जानिब से मगवियों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी है। धरने के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मजीद जानते हैं अफजल अता कलोड़ से। जी अफजल। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 दिनों से जिले भर में हिंदू पंचायत, शहरी, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से डाकू राज के खिलाफ स्ट्राइक है। मुकम्मल शहर बंद है। इस वक्त कौमी शहरा पे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के संगम देरा मोड़ में धरना जारी और सारी है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये धरना गुज़िश्ता रात से जारी है। 24 घंटे बीत चुके हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि जो इनके मुखवी हैं डॉक्टर मुनीर नायक, सागर कुमार, जगदीश जयदीप के साथ जितने भी जिले के 11 मुखवी हैं उनकी बाजियाबी तक ये धरना जारी रहेगा। यहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं। पुलिस इंतजामिया मुज़ाकरात के लिए भी इनके पास आ रही है, इनके आफरे कर रही है, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है, जब तक हमारे मुखवी बाजियाब नहीं होंगे तब तक हमारा धरना जारी और सारी रहेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ पंचायतें भी आई हुई है, कंदकोट, घोसपुर, तंगवानी, करमपुर, बख्शापुर और बडानी की पंचायतें भी कश्मीर में इनके साथ हैं। उनका यही कहना है हम यहाँ से तब उठेंगे जब हमारे मुखवी बाजियाब होंगे, नहीं तो हमारा धरना जारी रहेगा। कश्मीर जो शहरियों के लिए नोगो एरा बन चुका है, कश्मीर जो शहरियों के लिए नींद और सुकून खत्म हो चुका है, उन शहरियों ने रोडों पे आ गए और शहरियों ने रोडों को अपना ठिकाना बना लिया है। शहरियों ने कहा है हम अपने मुतालबा मनवा कर, हम अपने प्यारों को बाजियाब करा कर फिर जो है अपने घर जाएंगे, वरना यहाँ रोड पे हमारा धरना जारी रहेगा। जी अफजल अता हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी तरक्याती इदारे में तैनात 20 करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। FIA में होने वाली तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। CDA के 20 अफसरान करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और रिकॉर्ड टैंपरिंग में मुलव्विस पाए गए हैं। FIA ने तमाम अफसरान की माली तफसीलात तलब कर ली हैं। साकिब सैयद से मजीद डिटेल्स देंगे। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद वफाकी तरक्याती इदारे CDA तैनात 20 करप्ट अफसरान के गिर्द जो गिरा तंग कर लिया गया। FIA में होने वाली तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। CDA के 20 अफसरान करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और रिकॉर्ड टेम्परिंग में मुलव्विस पाए गए। FIA ने तमाम अफसरान की माली तफसीलात तलब कर ली। CDA तहकीकात करके बताया इन अफसरान के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, और ये भी पूछा गया कि इन अफसरान में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और
एडी रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। इन अफसरान में गुलाम सरवर, मोहम्मद शकील, जुल्फ़िकार अली, इसके साथ साथ 20 मजीद अफराद शामिल हैं। मुल्जिमान रिकॉर्ड टेम्परिंग करके ठेकेदार को जाली अदायगी भी करते रहे हैं। जी साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। एक बयान में उनका मजीद कहना था कि मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। मुल्क दुश्मन अपने एजेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की जरूरत क्या है। कराची और अंदरून सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे, बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद और कंदकोट में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जैकबाबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जिस वक्त इलेक्शन में पाकिस्तान तारीख दे देगा, हम इमीडिएटली उसके साथ इलेक्शन की तैयारी कर लेंगे। साफ, शफाफ और बिल्कुल इलेक्शन कराए जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी का ट्वीट, कहा महकमे दाखिला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पाक फौज की तैनाती के हवाले से मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरें और कयास आराइयाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सड़कें, तिजारती मराकज़, कारोबारी सरगर्मियाँ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की खदमात सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जहलुम के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तलब की गई हैं। जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए माजी की तरह खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।